students, how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is punctuation marks. Marks of punctuation lend clarity to our writing. Without them, we might even misunderstand the meaning of the writer. Look at these words. What are you looking for, Tarun? What does these word means? Do they mean this? What are you looking for, Tarun, or this? What are you looking for, Tarun? Obviously, if the writer had wanted the meaning to be clear, he should not have left out the marks of punctuation. तो बच्चों पंक्चुएशन मार्क जो होते हैं ये हमारे सेंटेंस होता है उसे क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या वहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन दिखा रहे हो या फुल स्टॉप वगैरह दिखा रहे हो। तो ये सब क्लियर करने के लिए हम पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं अपने सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे आपको एक सिंपल सेंटेंस दिया गया है, इसमें कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा हुआ, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है या आपको बात बताई जा रही है। Main marks of punctuation. The main marks of punctuation are full stop, marks of interrogation, marks of exclamation, comma, semicolon, colon, apostrophe, inverted commas, dash, hyphen. The full stop. We use a full stop to close a sentence or a command. We click photographs with our camera. Statement. Draw the curtain. Command. Second, the mark of interrogation. The mark of interrogation is placed at the end of a question. Who is there? Is anybody absent? The mark of exclamation. The mark of exclamation is placed at the end of an exclamatory sentences, that sentences which express some sudden or strong emotion. How kind of you. What a nice painting. तो बच्चों यहाँ पे फुल स्टॉप के बारे में जान लेते हैं। पहले फुल स्टॉप आप किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए, कमांड को एंड करने के लिए लगाते हो, ठीक है। मार्क ऑफ इंटरोगेशन जो आपका क्वेश्चन मार्क होता है ये आप क्वेश्चन को एंड करने के लिए लगाते हो। मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन जो आपका एक स्टैंडिंग लाइन होती है उसके बीच नीचे डॉट होता है, ये आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहलाता है। ये आप यूज़ करते हो जब आप सडन फीलिंग को, स्ट्रॉन्ग इमोशन को दिखाने के लिए यूज़ करते हो। इससे रिलेटेड यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज दी गई है छोटी सी, ये आप खुद से करेंगे। नाउ फोर्थ, द कॉमा। द कॉमा इज द शॉर्टेस्ट पॉज. It should be used wherever we think we need a pause. However, the following points should be helpful in understanding the use of the comma. The comma is used to separate words in series. All the rooms in this house are small, dark and dingy. The trains on the route are fast, comfortable and punctual. Second, it is used to separate phrases in series. Gandhiji was respected by all kinds of people, rich and poor, young and old, high and low. It is used to separate clauses in series. I have a friend who was born in the States, who was educated in England, who has traveled all over Europe and who teaches in the school in Muscat. तो बच्चों कॉमा के बारे में जान लेते हैं। कॉमा जो होता है ये आपका शॉर्टेस्ट पाउज होता है जो आपके सेंटेंस में आप दिखाते हो, ठीक है। जब भी आपको लगता है आपको आपके सेंटेंस में पाउज देना है तो आप कॉमा वहाँ पे यूज़ करते हो। और कॉमा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? जब आप वर्ड सीरीज़ को दिखाते हो, ठीक है, यहाँ पे भी आप कॉमा लगाते हो। जब आप किसी फ्रेज़ को सीरीज़ से अलग करते हो तब आप कॉमा लगाते हो। जब आप क्लॉज को सीरीज़ से अलग करते हो तब आप कॉमा लगाते हो। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जहाँ पे आपको नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क लगाने हैं। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप खुद से करेंगे। फिफ्थ, द सेमीकोलन. The semicolon is used between independence clauses not connected by a conjunction. Preeti is quiet and hardworking. Kanika is noisy and active. The machine made a strange noise. Then it just stopped. If the expression like however, nevertheless, then, hence, thus, for instance, consequently, etc. come between two independent clauses, a semicolon is placed before them. You haven't returned the earlier loan. Nevertheless, I will not disappoint you. Our teacher insisted on neat work. Therefore, I do my work very carefully. तो बच्चों सेमीकोलन के बारे में जान लेते हैं। सेमीकोलन हम यूज़ करते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज के बीच में, ठीक है। ये कंजक्शन के द्वारा कनेक्टेड नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में बताया गया है। अगर आपके एक्सप्रेशन जैसे कि हाउ एवर, नेवरदलेस, देन, हेंस, इस तरह के वर्ड आप यूज़ करते हो तो इनके बाद भी आप क्या लगाते हो? कॉलन, सेमीकोलन लगाते हो,
ठीक है। सिक्स्थ है द कॉलोन। द कॉलोन इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। द लीडर सेड दैट वी शुड हैव 3 qualities: courage, strength and sincerity. It is also used to separate 2 contrasting statements. The air is human to forgive divine. Apostrophe. We add an apostrophe and s to form the possessive of any singular noun. Mona's frock, Anshuman's book, the girl's dress. To form the possessive of a plural noun ending in s, we add only an apostrophe. The boys' hostel, workers' demand. To form the possessive of a plural noun that does not end in s, we add an apostrophe and s. Children's books, policeman's quarters. 8. Inverted comma are used to enclose the actual words of a speaker. Example: Sheila said her height is good. John said to Richa, let us play football today. तो बच्चों यहाँ पे हम कॉलोन के बीच बारे में जान लेते हैं। कॉलोन जो होता है ये किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये आपके 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट को भी अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। अपोस्ट्रोफे जो होता है ये आपके पोजेसिवनेस को दिखाता है, मतलब आपका पोजेशन दिखाता है किसी भी चीज़ में। जैसे कि मोनास फ्रॉक, फ्रॉक किसकी है? मोना की, तो वो पोजेशन दिखा रहा है, बिलोंगिंग दिखा रहा है कि वो चीज़ मोना की है। साथ ही साथ ये आपके प्लूरल नाउन को भी क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जब आपका प्लूरल नाउन होता है और वो एस के साथ एंड हो रहा होता है तो आप वहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते, आप वहाँ पे बस अपोस्ट्रोफे का जो साइन है वो आप यूज़ करते हैं। जैसे कि द बॉयज़, अब बॉयज़ क्या है? प्लूरल फॉर्म में, तो आप यहाँ पे जस्ट एक अपोस्ट्रोफे लगा दोगे, एस ऐड यहाँ पे नहीं करोगे। इन्वर्टेड कॉमा के बारे में जान लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं, आप किसी स्पीकर के एक्चुअल वर्ड को जब आप कोट करते हो तो आप वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हो। तो बच्चों यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द डैश। अ डैश इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस। एवरीबडी, द स्पेक्टेटर्स, द प्लेयर्स, द जर्नलिस्ट praised her performance. It is used after a list of items when this list is followed by an exclamation. Friends, colleagues, relatives, none came to his help. To join my father's business, to go abroad for higher studies, to look for a job in Indian, these were my options. 10th, the hyphen. A hyphen is used with compound numbers from 21 to 99, 37, 59, 81. It is used in writing compound words. Son-in-law, maidservant, passerby. It is used in compound adjectives. A 2-story house, ready to wear garments. तो बच्चों डैश के बारे में जान लेते हैं। डैश जो होता है ये आपके सेंटेंस के मिडल में यूज़ किया जाता है जब आप किसी एक्सप्लेनेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो। साथ ही साथ ये आपके लिस्ट ऑफ आइटम के बाद भी आता है जो कि एक्सप्लेनेशन के बाद फॉलो किया जाता है। हाइफन ये भी आपके डैश की तरह होता है लेकिन ये उससे थोड़ा छोटा होता है। हाइफन जो होता है ये आपके कंपाउंड नंबर के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे कि 21, 99 इस तरीके से। साथ ही साथ ये आपके कंपाउंड वर्ड्स के साथ भी यूज़ किया जाता है। सन इन लॉ, मेड सर्वेंट, पैसर बाय, ये आपके कंपाउंड एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि 2-story हाउस, रेडी टू वियर गारमेंट एक्सेट्रा। तो बच्चों आई होप आपको पंक्चुएशन मार्क का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।